Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya Sagar. He is kind enough to accept invitation of Sangathan. I also welcome Dr. VM Singh, Senior Psychiatrist, Burhar Central Hospital, Dhanpuri. He is having 30 years experience in dealing children. I also welcome all principals, headmistress, headmasters, and all other dignitaries present in this workshop being organized by Kendriya Vidyalaya Sangathan, Jabalpur region, Jabalpur. In our contest, we can see we are having diverse classroom with students of varying needs. They are different, they are from different backgrounds. Thus, in our classroom, it is required to ensure the wide range of educational opportunities which can be accessed by all. It requires to ensure equity and inclusion in our classroom among all children. And this is also the heart of NEP 2020. Inclusive education means different and diverse students learning side by side in the through accepting, understanding, and attending to students' differences and diversity. These differences can be in terms of gender, socio-economic background, and disability, or maybe in the learning disability, learning difficulties. For this, it is required for stakeholder to aware and oriented about these learning disabilities. Thus, this type of celebrating such kind of awareness month and conducting such workshop will definitely enrich and create a way to provide appropriate learning environment to reach the potential to our children. I hope this workshop will illuminate more about dyslexia and help us to develop more insight about its identification and handling this dyslexia. Once again, I welcome all the dignitaries present on this workshop. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. You correctly said that it is a time we need to focus on inclusive education. Along with the socioeconomic disadvantaged children, underprivileged children, we have to give attention to the students which are sitting in the classroom. Actually, they are sitting in the back bench of the classroom where they actually need us because they are having learning disabilities and learning difficulties. They are although not visible, but it requires the awareness on the part of teacher. Now, I would like to request Honorable DC Sir, Mr. Tajuddin Sheikh, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Jabalpur region, for his inaugural speech. Sir, you are requested. Thank you, Deepa ma'am. Sabhi ko namaskar. Without taking much time, I would like to wish all the people here to this program we are organized as a part of 1 month awareness on dyslexia. As being a central government school, public school, Kendriya Vidyalayas are imparting education for all children without any discrimination. We are strictly following the inclusive education, the guidelines, and whatever the suggestions given by the ministry and government of India. So yes, it is the need of everyone. When we are handling a group of children in a class, we must know what our children are. Otherwise, what happened? A teacher is working and a teacher is teaching in a class without understanding the students, then it will be difficult to achieve the learning outcomes. Attaining learning outcomes is very, very important at the present situation. Otherwise, what happened? Whatever teacher is teaching, so only few children will take it and other will dissociate themselves with the classroom teaching. That will cause a severe academic loss, and it will leads to really the energies of teacher. They will not give any
fruitful results. So in such situation, this is an opportunity to every teacher to understand the diversity of their class. When they are understanding the diversity, so definitely they will get plans and ideas, what examples they can take, what type of activities they can conduct, and what type of plan they can do in their classroom teaching, so that every child can understand what they are teaching. This is the most important aspect, because I think many of you people are experienced the comments, such type of comments, ये बच्चा तो पढ़ता नहीं है, ये बच्चा तो समझता ही नहीं है, this type of comments. बच्चे सभी भी समान हैं, every child is intelligent. क्योंकि हमारा परसेप्शन, हम जो टीच करते हैं एक स्टाइल में टीच करते हैं, then that's why these children, they are unable to understand. We have to see the child centric way of teaching. इसीलिए हमें रिसेंटली यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, इस पे भी हमें एक वर्कशॉप प्राइमरी टीचर्स के लिए करवाए थे. So understanding LD and handling LD is very, very important. As Deepa ma'am said, nearly 22% of our children, they are learning disabled. So this is a great opportunity, because we have wonderful resource persons from university as well as the government sector. These people, these resource persons definitely give a lot of insightful to every teacher, so that they can easily handle such type of children. So on behalf of regional office, I'm wishing all the participants here, parents also join, a wonderful opportunity for parents, so that how they can coordinate with the teacher and school, so that the child can develop. The teacher, the school, the parent, all we are working for a child, so that definitely this type of coordination will help. So thank you very much. My best wishes to Brajesh ji for conducting this workshop. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you very much. Now I'm requesting Honorable Assistant Commissioner Dr. Mrs. Vandana Shekhar Ma'am, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Jabalpur region, to kindly enlighten us with her thoughts. Ma'am, you are requested. नमस्कार सभी को. हमारी आवाज आ रही है ठीक से? Yes, ma'am, you are clearly audible. थैंक यू दीपा. नमस्कार सभी को, माननीय उपायुक्त महोदय जी और हमारे आज के गेस्ट स्पीकर्स डॉक्टर BM सिंह, सीनियर साइकेट्रिस्ट, एंड डॉक्टर बुद्ध सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम सागर यूनिवर्सिटी, होस्ट प्रिंसिपल, ऑल माय HMs, सीनियर PRTs, डियर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम ये अपने पूरे संभाग के जबलपुर संभागीय स्तर की कार्यशाला अच्छे से आयोजित कर पा रहे हैं. और मैं समझती हूँ कि ये कार्यशाला हमारे लिए, सभी पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, दिस विल बी अ वेरी लर्निंग स्टेप, बिकॉज डिसलेक्सिया जो एक इशू है, जो कि हमारी ब्रेन डेवलपमेंट, स्पेशली लर्निंग एबिलिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन रहता है कि हमारे स्टूडेंट्स की कहीं ना कहीं लर्निंग डिसेबिलिटीज आइडेंटिफाई नहीं हो पाती हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते. सबसे बड़ा क्या है, हमारे जो सोशल स्टिग्मास हैं, दे ट्रबल अस सो मच दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि बच्चे की जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं उसके बायोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है. क्योंकि डिसलेक्सिया जो हमारी प्रॉब्लम है, ये ऐसा नहीं है कि केवल हम कहें साइकोलॉजिकल पार्ट केवल नहीं कह सकते, या सोशल इशू है, ये ब्रेन डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है. तो दिस इज वेरी साइंटिफिक एंड टेक्निकल इशू, जो कि काफी कॉमन भी हमें कई बार देखने में आता है, बच्चों में ऑब्जर्व हम करते हैं. लेकिन जब तक हम अच्छे से उसको डायग्नोस ना कर पाए, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि कैसे ये बच्चा लर्निंग में कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है. बिकॉज एवरी चाइल्ड इज यूनिक. सबसे पहले हम ये बात एक्सेप्ट करें, जहां हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि केवल हम एक ही एस्पेक्ट देखते हैं. ये एक वन एस्पेक्ट है. लर्निंग डिसेबिलिटी इज वन एस्पेक्ट. देयर कैन बी सम सोशल inequalities also. There can be some visible physical, I should say, disabilities also.
तो जो हमारी डिसलेक्सिया प्रॉब्लम है, इट इज नॉट वेरी विजिबल, है ना। ये जो हमारी इनेबिलिटी है, लर्निंग से रिलेटेड डिसेबिलिटी है, जो हमारे लिए हमको एकदम स्पष्ट नहीं समझ में आती है, क्योंकि बाकी चीजों में, एक्टिविटीज में बच्चा बहुत अच्छा हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, लेकिन जहां पर हम ये देखते हैं कि एज कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन, आप ये देखिए कि छोटी उम्र से ही आप लोग, पेरेंट्स से मैं अनुरोध करूंगी, हमारे प्राइमरी सेक्शन के, इसलिए हमने टीचर्स को केवल लिया है क्योंकि हम क्लास 1 से और पहली अर्ली एज में भी बच्चे को ऑब्जर्व करिए, उसको टोकिए नहीं। लेट द चाइल्ड टेक डिफरेंट एक्शंस ऑन इट्स ओन, नेचुरल वे में वो जो एक्शन कर रहा है उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ पर बच्चे का नॉर्मल एक्शन हमें ठीक से दिख नहीं रहा है। एक बच्चा बी आइडेंटिफाई कर रहा है, दूसरा बच्चा हो सकता है डी बोल दे उसे, हो सकता है वो उस लेटर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा, एक सी बोल रहा है, दूसरा नहीं समझ पा रहा। तो जो नॉर्मल एंड सिंपल आइडेंटिफिकेशंस हैं, स्टेप्स हैं, एक्शंस हैं बच्चे के, तो उस तरह की अगर डिसेबिलिटीज कहीं ऑब्जर्व होती है तो उसको हमें समझना है, और उसको आप ये नहीं सोचिए स्टिग्मा की तरह नहीं सोचना है। दिस इज वेरी कॉमन, डिसलेक्सिया इज वेरी नॉर्मल फीचर है, जो बहुत एमिनेंट साइंटिस्ट आप कहेंगे, एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं डिफरेंट फील्ड्स में, और ये बच्चे ऐसा नहीं है कि दे कांट एक्सेल, दे आर द वेरी टॉप स्कोरर्स, आई शुड से, दे आर द हाई अचीवर्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो कभी भी आप उसको स्टिग्मा से नहीं माने, और बच्चे को हमें कहीं ब्रांडिंग नहीं करनी है। हमारे सभी टीचर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, पेरेंट्स भी ये ध्यान दें कि इस डिसेबिलिटी को आप कहीं ब्रांडिंग ना करें कि मेरे बच्चे में बहुत बड़ी कमी है। वो कमी, उस वीक एरिया को हमें स्ट्रेंथन करना है, उसी को हमें उस बच्चे की स्ट्रेंथ बना देना है, तब उसमें हमारी ज्यादा काबिलियत समझ में आएगी और वो बच्चा बहुत अच्छे से कर पाता है। तो जिस ढंग से बच्चा किसी बात को सीख सकता है उसको हमें वर्कआउट करना है, हमें बच्चे को फोर्स नहीं करना है, हमें उसके रेक्टिफिकेशन पे एफर्ट नहीं करना है। हमें मेन हमारा जो वर्क है, जो मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड जो हमारी डिसलेक्सिया वाली जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो कि इन बच्चों को उनके ढंग से सीखने के लिए प्रेरित कर सके, है ना। हर साल डिसलेक्सिया मंथ हमारी गवर्नमेंट उसको ऑर्गेनाइज करती है, डिफरेंट एक्टिविटीज करती है। तो इस मंथ को ऑर्गेनाइज करने का मेन पर्पस ये है कि सभी की, कॉमन मैन की फैमिलीज में भी अवेयरनेस बढ़े, केवल एजुकेशन की फील्ड में ही नहीं, हर डिपार्टमेंट, हर एरिया जो हमारे ह्यूमन लाइफ का है, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये चीजें हम बच्चे के बचपन से समझ सकें, उसको छोटे से समझ सकें, और उसको समझकर हमें घर में भी, स्कूल में भी ऐसा माहौल देना है, चाहे हमारे पास 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, ये एक्सक्यूज नहीं रहता है। क्योंकि हम डिफरेंट टाइप के जब हमें बच्चे मिलते हैं तो उनको देखते हुए, उनको समझते हुए हम क्लास में उस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, और बाकी जो हमारे सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं, सपोर्टिव मेंबर्स हैं हमारे घर में, स्कूल में, उनको हमें इस तरह से एक माहौल में संभालना है कि सब एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए आगे बढ़े। और ये जो हमारे बच्चे हैं जो कहीं लर्निंग डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है, उनके लिए हम ऐसा माहौल बनाए कि उन्हें पता भी नहीं पड़ेगा और वो सीखते जाएंगे। तो सीखने के जो मेन हमारा पर्पस ये है कि हम कैसे इन बच्चों को समझ सकें, उनकी कमी को हम देख सकें, उस कमी को हम स्ट्रेंथन कर सकें, और बच्चा आसानी से हर चीज को हर ढंग से सीख सके, अपने ढंग से वो आगे बढ़ सके, और उसको हमें वो फ्रीडम और लिबर्टी देनी है, उसको कहीं भी हमें फोर्स नहीं करना है। तो हमारे टीचर्स का डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये एक तरह की जेनेटिक डिसेबिलिटी है, सभी को ये मैं बताना चाहूंगी। वैसे तो हमारे दोनों जो गेस्ट स्पीकर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो ज्यादा और डिटेल में बताएंगे। वी आर नॉट दैट, कहना चाहिए कि टेक्निकली इतने साउंड हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन ये एक जेनेटिक डिसेबिलिटी रहती है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन भी पास ऑन होती है। मैनी टाइम्स दीज आर नॉट आइडेंटिफाइड ऑल्सो, है ना। तो आपके हमारे बहुत सारे ओलंपियंस भी हैं जो इस प्रॉब्लम से रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वो अभी हमारे गेस्ट स्पीकर्स बोलेंगे, बताएंगे आप लोग को। तो सभी पेरेंट्स से भी इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग बच्चों में, अपने बच्चे में, और टीचर्स से भी मेरा, मैं ये कहूंगी, ये इस तरह के ऑब्जर्वेशन आते हैं तो उसको बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही कंड्यूसिव, अफेक्शनेट एटमॉस्फेयर के साथ इन बच्चों को हम सपोर्ट दें, और इन बच्चों की जो स्ट्रेंथ है उससे हम अपने अचीवमेंट्स को तो एनहांस करते ही हैं, साथ में हम वी ऐड टू द
betterment of the human life. तो हमारे लिए बहुत important है, and I understand this workshop definitely will be of great benefit when Dr. Buddha Singh and Dr. B.M. Singh will be adding their expertise in different aspects of this topic. So my best wishes to one and all, and my thanks and gratitude to my DC sir. Actually, this topic was suggested by sir, and it is his initiative to go for this workshop. And I'm really very grateful to both the guest speakers. They had been so kind enough to accept our invitation despite their very busy schedule. I understand Dr. B.M. Singh to unka OPD ka time bhi yahi hota hai, as when I was talking with him. But he has taken his time. So I'm really thankful to all, and to all my teachers, to the host principal, my dear parents and children. And definitely this workshop will give us an insight and good inputs so we can work better, we can create better atmosphere for our children. Thank you, everybody. Wish you all the best. Namaskar. Thank you, ma'am. Thank you very much for your generous sharing of knowledge. Now, when we talk about the dyslexia, we automatically connect it with a previous movie named Tare Zameen Par. There was a boy who was coping up because of this learning difficulty at his school as well as at his home because of his academic performance. There, the role of the teacher comes up, and the teacher become aware and understood and taken the measure to cope up this particular boy from this learning difficulty, dyslexia. Although you have all seen that movie, if suppose someone has skipped, so we are having a clip so that we can have at least we can make a view about the dyslexia. So please watch this movie. पिछले साल वो 3rd स्टैंडर्ड में फेल हो गया, यकीन करेंगे 3rd स्टैंडर्ड, और सुधरने के कोई आसार नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है, और वो दूसरा। आपको क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसका रवैया, और क्या? पढ़ाई की तरफ, हर चीज की तरफ हमेशा बदमाशी, तेवर ही तेवर, कभी कोई बात ही नहीं सुनेगा। मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं। आप तो फिर आप ही बताइए, बताइए। उसके पढ़ने लिखने की गलतियों में आपने कोई पैटर्न देखा, कोई गलती जो वो दोहराता हो? पैटर्न? काय का पैटर्न? सब गलतियां ही गलतियां। फिर आप पैटर्न पहचान नहीं पाए। ये देखिए, ये बी की जगह डी तो डी की जगह बी, एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन। और ये एस और आर उल्टा लिखा है, बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे हैं। ये देखिए, छोटा एच, छोटा टी, देखा? मिरर इमेजिंग। एनिमल, 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 एक ही पेज पे 3 अलग अलग स्पेलिंग। इसका मतलब कोई एक गलत स्पेलिंग उसे याद है, ऐसा नहीं। दूसरी बात, एक जैसे शब्दों को मिक्सअप करता है। ये टीओपी टॉप बन गया पीओटी पॉट, SOLID सॉलिड बन गया SOILD सॉलिड। क्यों करता है वो ऐसा? बेवकूफ है, आलसी है ना। मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है। जब आप APPLE एप्पल पढ़ती है तो आप अपने दिमाग में एक लाल लाल एप्पल बना लेती है। ईशान वो एप्पल पढ़ ही नहीं पाता, शायद इसलिए मतलब नहीं समझ पाता। पढ़ने लिखने के लिए अक्षरों की आवाज, उनकी बनावट, शब्दों का मतलब समझ, ये जरूरत ईशान पूरी नहीं कर पा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं पढ़ाई टालने के। जरा ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी। ये कैसे पढ़ सकता हूँ मैं? ये तो चाइनीज में। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ इसको? बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं है, ये आप शैतानी कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की, अक्षर ही समझ में नहीं आते होंगे। इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को
डिसलेक्सिया कहते हैं। Before we introduce to our speakers, I'm requesting to the participants that if you are having any query or any doubt during the session, you can type it in the chat box. We will consider it later on in our discussion session when all the two speakers will have completed their talk. So if you are having any query, you can type it in the chat box, or either you can keep it for the discussion session. Now it's time to hear from our speakers. First of all, I would like to invite Dr. Buddha Singh, Assistant Professor, Department of Education, Dr. Hari Singh Gaur, University, Sagar. Sir is a renowned educationist and has contributed a lot in the field of education. Sir has a 12-year of experience as well as has the expertise in educational psychology and inclusive education as well as language education. Sir has a vast publication. He has published his work in various national and international journals. Sir, you are welcomed. Sir, you are requested to kindly illuminate us about this topic. Thank you, ma'am. First of all, I welcome and I'm very much thankful to Dr. Tajuddin Sheikh, Deputy Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Jabalpur region, and Dr. Shrimati Vandana Shekhar, ma'am, Assistant Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Jabalpur region, Dr. BM Singh, Senior Psychiatrist, Burdar Kendriya Hospital, Dhanpuri, Principal Pandesa and Deepa ma'am and all the faculty members, parents, students who are attending this workshop. I welcome you all, and I am very much thankful to Kendriya Vidyalaya Sangathan for providing me this opportunity to share my views on a very relevant and very important topic, dyslexia. Definitely, this is need of the hour to talk on this very important issue. Because in day-to-day school life, we are facing lots of students who are facing this problem, and this is a very, I must say, innovative initiative of Kendriya Vidyalaya Sangathan that that they are organizing this kind of workshops for their faculty members, students, teachers, parents. I would like to start my presentation. I'm trying to share my screen. Please let me know if it is visible to all. Yes. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. We can Okay. see. Thank you. Thank you. See, the term dyslexia, basically, it is related with what we say learning disabilities. It is one of the most common and we say severe level of learning disability. But before that, we first try to know what is learning disability. It is basically a heterogeneous group of disorders manifested by significant difficulties in the acquisition and use of listening, speaking, reading, writing, reasoning, or mathematical abilities. Now, basically, what happened that in simple word we can say that when a student is or when a person is unable to listen properly, he's or she is not being able to identify the letters or sounds, and he or she is not being able to comprehend the meaning of letters and sounds, and then definitely he will not be able to read and write if he is not being able to identify the letters and sounds. So these kind of difficulties when a student face in the school, we generally call him or her a learning disabled.
And these disorders are instinctive to the individual and presumed to be due to central nervous system dysfunction. You see, when we will be talking about dyslexia, one thing I would like to share with all the participants that because most of the faculty members are here, and if I'm hoping that some of the parents will also be here in the workshop, and even we are all parents. Never try to think that dyslexia is a disease. Dyslexia is not a disease at all. And Dr. B.M. Singh will explain it in detail that how it is not a disease. Dyslexia actually was first identified by Oswald Bachan in 1881, and the term was introduced by Rudolf Bari. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. Okay. Actually, this is an extreme form of learning disability, and it is most common among the student. It is basically a problem where students are unable to read words, and they are unable to deal with the letters in print. For example, if something is written on the book, he or she is unable to read that. He is not being able to identify the words even after we are teaching him for a long time, and even if he or she have a normal or we can say average intelligence. It is an unexpected difficulty in reading in an individual who has the intelligence to be a much better reader. See, as far as the intelligence is concerned, a person or a student should be very good in reading, but he is not being able to. The reason is that he have some neurological problem and brain-related problem, by the reason of which she or he is not being able to identify or read the properly. Basically, it is related to reading and writing and pronouncing the words. It is a language-based disability that cause difficulties with word recognition, spelling, reading, and comprehension. A student is not being able to integrate the phonemes into letter into words, and words into sentences. And many a time it happens that we think he's not working very hard in the studies, but actually he is not able to do that. See, before moving further, I would like to show you some examples of dyslexia. I'm trying to share my screen. I have some pictures of students' work and okay, yes. See, this is the assessment of a student, of 9th grade student. See how he is writing. Actually, I got this results papers from my friend who is a special educator in Haryana, and Haryana is see, as far as the education is concerned, Haryana is a very leading state in the terms of resources and facilities, but still a lot of students who are facing this problem. They are not good in writing and even in reading. So see here we can see that what kind of problems they are facing, and when we are talking about dyslexia and we want to face it, and we want to have some improvement at the school level, and we want to develop our students in better way, then we need to assess the student, that how we can assess that these students are facing this problem. This is very important, and there are some symptoms by which we can identify the students, and these symptoms can vary from person to person.
these are this is just a list of some symptoms that can be seen among the students who are suffering from dyslexia. When we are talking about the preschool students or students who are getting ready for going to school, then you will find that they face trouble in learning common nursery rhymes. If any student is not being able to learn very simple nursery rhymes, which we are, whether they are in Hindi, whether they are in other regional languages or in English, then we can. However, we cannot conclude at once that he or she is dyslexic, but this is a symptom by which we can identify. These symptoms actually will help all of we people to identify a dyslexic student, because these are the just symptom to identify a student, but we cannot tag him that he is or she is a dyslexic. There are further certain tests which are being implemented on the students, and then we can say that student is a dyslexic. And even if number of symptoms are being presented and a number of symptoms are being observed, then only then we can say that a student may be dyslexic. But just observing one symptom, we cannot tag a student like this. So second, he or she feels difficulty in learning and remembering the names of letters in the alphabet. For example, you are continuously teaching him that this is R, this is P, this is K, this is K. Then again, after teaching again and again, he is unable to identify the letters, and he is unable to learn the letters. Seems unable to recognize colors or numbers. If a student is unable to recognize the colors and numbers, then this is another symptom of dyslexia. Am I audible? Deepa ma'am, please. Yes, sir. Yes, sir, you are audible. There's some Oh. some of you are have opened. Have unmuted yourself. Kindly mute yourself. Okay. You're audible, sir. Continue, please. Okay. Then a dyslexic student may mispronounce familiar words, and persistently he or she do baby talks. See, when we are teaching language to our kids, and when mela bachcha hai, and during this practice, even child learn to speak some words incorrectly, but that is not dyslexia. Later, after when he comes to school, goes to school, and when he or she grows up, then this problem is removed. But when persistently he or she is doing baby talk, and he or she is unable to pronounce the words, then we can guess, or we can assume that he or she may be a problem of dyslexia. Then does not recognize a rhyming pattern. The child, if a child at preschool level unable to recognize the rhyming words cat, pat, bat, rat, mime, rhyme, moon, soon, then we can say that he may be or she may be suffering from dyslexia. Then another reason is if as Madam Vandana was telling, that this is the hereditary disease actually, then we must care that if a family member, for example, being a parent, if I am facing this kind of problem in reading and writing or in spelling, then I can observe my child if he or she is repeating that mistake again, or if he or she is doing that as my
child, then I can or I may conclude that he or maybe she may be suffering from that dyslexia problem. Then when we come to the kindergarten stage, kindergarten means when we come to the stage of 4, 5, or first grade student at 6 years. Then again, this problem can the symptoms can be different. However, the symptoms which we discussed in previous slide may be seen in the student, but again, here student is unable to differentiate the words. For example, if you tell him he has learned or she has learned puppy, he saw or she saw a puppy at home or in the street or anywhere else, he repeatedly call a dog puppy, even after many times you have taught him or that this is dog. Instead of speaking dog, he or she will speak puppy. So this is also a problem. And again, a dyslexic student does not understand that words come apart. When he or she try to read, he or she tried to read the word together. Okay. He or she is not being able to understand that the words are written apart. He is not being able to differentiate the words from a sentence. When he or she will write, she will write all the words together. He or she will make a single word to the whole sentence. Complaints about how hard reading is. All the time, a dyslexic student complained about reading, that reading is very difficult, reading is very hard. And when a teacher or parents try to give him reading practice or her reading practice, then they run and they disappear that this is very difficult task. And cannot sound out even simple words like eat, cat, map, nap. Even he's not being able to learn these kind of words and speak these kind of, does not associate letters with sound. Yeah, that is the biggest symptoms that a dyslexic child is not being able to associate the letters with sound. For example, he's not being able to understand that B is called B. B means B sound, or D means do sound. That is the reason. And when we come at the school level, there are another symptoms we see among the students. They are very slow in acquiring reading skill, and the reading is very awkward. When you ask a student to read, he is very slow and unable to speak the words properly, and even you will observe that the pronunciation is not good. And that is the reason that all the time he or she avoids loud reading. When a teacher asks him or her to speak loudly, then she or he avoids. Trouble reading unfamiliar words, often making wild guess. When he read words or she read words, instead of reading the words and combining the letters together, he make wild guesses about the pronunciation of the words, and searches for a specific word and ends up using vague language. For example, if you must be observing that many a time we do this thing during the communication, that when you are talking to someone, you said that fala fala. So these kind of words she use continuously and unable to find the appropriate word during the conversation. That is the problem. And then pause, hesitate, and use lots of ums when speaking. When you are talking to a dyslexic student, he or she is unable to speak fluently and use very much like this, and mispronunciation of long, unfamiliar, and complicated words. His or her pronunciation is poor and unable to speak lengthy words. Then seems to need extra time to respond to question. See, these symptoms we will have to keep in mind when we will plan education for the students with dyslexia. See, when a child is unable to
complete his learning task on time, then we can plan that some extra time should be given to him or her. So here we observe that in dyslexia, students need some extra time to respond when the teacher asks him or her question. Trouble remembering dates, names, telephone numbers, and random lists, and even struggle to finish test on time. All the time he or she get late and always complain about the less time in that it is limited time to complete the task, and extreme difficulty in learning foreign language. See here, I would like to add one thing, that many a time it happens that no doubt dyslexia is related to brain dysfunction, and it's maybe hereditary problem. However, the major or main cause of dyslexia are unknown, still unknown, but still this heredity is one of the major reason. And see, nowadays the English medium schools are in wake, and all the parents are trying to send their wards to their children to English medium school, and even students who are from low family, economically poor family background, and from backward, we say socially backward region, where the student find it difficult to learn English. Then when parents send their children to school, and not all, but most of the students find it difficult to learn English, because however they are good in their mother tongue. But at this time, we will have to keep in mind that if a student is not good in English and he is not being able to learn English, then it doesn't mean that he or she will be a dyslexic, because he is very good in his mother tongue, or he is very good in Hindi. Okay, so in this way, we cannot, tag him that he or she is a dyslexic. So, but this is one of the symptoms that he or she, if he or she is not being able to learn English, because fear is another big reason that when we go to English, most of the parents and our society say that English is a difficult language, tough language, foreign language. So these are also the factors who stop the child to learn English properly. But this is one of the symptoms. Poor spelling and messy handwriting, definitely. I have shown you one example. Low self-esteem that may not be immediately visible. See, most of the dyslexic students think that they are very poor in study. However, they are not. However, they are not dumb. They are intelligent. And as ma'am have told, that there are a number of examples who are dyslexic and they prove themselves very great personalities, like there are examples of Walt Disney, Abhishek Bachchan, and Albert Einstein. So and even Albert Einstein was autistic child also. So these are example that a person can be very great, and even dyslexic children can learn with some extra help and modified teaching learning techniques, and rarely read for pleasure. Dyslexic children don't like reading, so they never study for pleasure, as most of the students love to read literature for the pleasure. So slow reading of most of materials, books, manuals, subtitles, whatever you give to them, they are very slow in reading. And spoken vocabulary is smaller than listening vocabulary. Yeah, their vocabulary is very good when they are listening to others, but when you ask them to speak, they'll find that their vocabulary is not good. And they are, because the reason is they are not being able to use those words when they are making sentences, when they are framing sentences, and even they face difficulty in pronouncing the words, integrating the words. Spoken vocabulary is smaller than listening vocabulary, and avoid saying words that might be mispronounced. And all the time when they think that I'll mispronounce this word,
and I'm not being able to pronounce this word, then they will avoid speaking that word. So these are the some symptoms by which we can identify a dyslexic student. But still, this need to be this activity need to be done very carefully. There are some other facts about dyslexia. Dyslexia affecting 20% of the population and representing 80 to 90% of all those with a learning disability. See, in the beginning, I share with you that dyslexia is most common learning disability, because generally we in education classify learning disability in 4 categories: dyslexia, dyscalculia, dysgraphia, and ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. So when you are talking about dyslexia, you will see the symptom of all other learning disabilities. So that is the reason that dyslexia is most common, and all the population, among all the population, near about almost 20%. This 20% is not exact figure, and the dyslexia varies. Sometimes a person may be very, there may be a deep dyslexia, and a person may not be very severe. So dyslexia, the degree, or what we say, vary from a person to person, may vary from person to person, but almost 20% of people are affected from this problem. And see, another fact is it is more common in males. This is another very shocking fact, and there are studies that when the anatomy of brain was studies, and and it was there was a comparison between male and female. So there were differences in the anatomy of males and females' brain. So on the basis of that, researcher concluded that it is it is more common, and even the girls are. We can say the girls are less affected from this problem. And dyslexia is very much associated with attention deficit disorder. Because when we talk about ADHD, almost 46 student will be ADHD when we take 100 dyslexic student. So this is another fact about the dyslexia. And IQ is not correlated with it. Dyslexia can occur in individual of among the high IQ individuals, and this is not a sign of low intelligence. If a child is dyslexic, you cannot say that the child is dumb, he is not intelligent. Okay, so this is a problem and of our neurosystem, related to our neurosystem and brain functioning. Dyslexia is not caused by poor vision. Even many a time, if a child is not being able to read the word, you cannot say that he is not being able to see the letter. His vision is poor. Okay. However, many a time it happens that due to vision, a child is not being able to read. But it is not because of dyslexia that vision may be weak or कमजोर हो सकती है. There are basically 3 types of dyslexia. Yes. Am I audible? Sorry, sir. I think AC ma'am want to say something. I think ma'am has raised her hand. Okay. Yes. Sorry for interruption, sir. I think ma'am want to say something. Ma'am has raised her hand. Ma'am, is that so? No, I don't think so. It's, Okay. Sorry, sir. Sorry for I interruption. think it may be my mistake. Okay. Actually, it is the second last slide. We will just conclude. So this is there are basically 3 types of dyslexia. Trauma dyslexia, basically that are accidental. That if there is an injury during in any time,
this may be this is the type of dyslexia, injury during pregnancy or after that. And then primary dyslexia, this is basically hereditary. Primary dyslexia, if it comes from one generation to another. And third is a developmental dyslexia. Developmental dyslexia is very much what we say a matter of great study, because it starts from the womb and it keep on growing among the individual. So these are basically the types of dyslexia. And but basically, what is the purpose of today's my lecture? That being a teacher, what we can do. First thing is, as I have told you, that there are certain symptoms and you should try to identify the student. And definitely it is very difficult for a teacher to identify students and to pay individual attentions at student when there are large number of students in the class. But actually, and to conclude, we can say that this is actually the duty of teacher, whether there are larger number of students or whether there are class is very small. So being a teacher, you should try to first assess the child on the basis of certain symptoms. Later you can take the help of some expert or special teacher, sport teacher, if available at the school level. Then you can start giving some additional help to the student. There is no medicine available for dyslexia, as I know. Further, our Dr. Sir will tell you that whether there are if there is something. However, I don't think so that there will be any kind of medicine. But the only thing is that you can provide extra efforts. You can do extra efforts, and you can provide extra facilities to the child to learn in a better way. So first, dyslexia is not a disease. Sorry, I have written N by mistake. So assessment of dyslexia and involving parents. First, you should try to assess the dyslexia, and you should inform the parent that your child is facing this problem. And even you should, as a teacher, you should aware the parent that don't try to, tag the student and brand the student, or don't be afraid. This is a general problem, and we can come out of this. However, many a time it is severe, but as a teacher, you can, bring the child to the optimum level of learning by giving some extra facility or extra teaching. See, variety of learning material and audiovisual aids should be used. Your material, mostly we are taking the help of textbook to teach the student. We can take different kind of audiovisual aids. We can plan individualized instructional material. Generally, we plan our material according to a group, but we should keep in mind the every individual. And if there is any student facing this problem, you can plan special content, special material for that student to learn. And even you can as a teacher, we should also try to make the timetable flexible and make the curriculum flexible for the dyslexic students. If a student is not being able to learn all the activities, no problem. In which field he or she is good, we should try to motivate him to do those activities. Particularly if a student is very good in sports, then we should motivate him to do sports. However, we should also try to make him good in reading and writing, and we should keep on doing good efforts. And audiovisual aids, you should try to use audiovisual aids. And I must say that nowadays there is no option of computer assisted instructions. You can use PowerPoint presentation, and you can add so many things: audio, video, 3D presentation, 3D projections, and that will help a child to learn. And even you can take the help of language lab when you are giving him or her practice of reading and writing. And involving visual elements and body elements. Well, you should also take the help of visual elements and body elements. The body of child should be involved in learning.
see, when a child is not being able to learn by through the visual elements, you should take the help of his body elements. He should involve. You can ask the student make letter B and D from clay. Okay, and in that form, and you can ask the child to make the letter on sand. Okay, you can ask the student to make or paint the letters. So in this way they can learn. And even instead of using charts, large charts, you can take flashcards. It means one word at one time, one letter at one time, one sound at one time. These kind of techniques should be used by the teacher. And generally we teach alphabets and then words to the student. But when a student is dyslexic, however, this technique should be used for all the students, every student. We should start with phonemes. First, we should teach them the sounds so that their pronunciation may be good. For example, s sound, ro sound, bo sound, how this sound will be pronounced, how this sound is being produced with our vocal organs. So teacher should focus on this, and if we teach phonemes, letters and words separately, and then we try to combine them into the sentences and try to give them a form of sentence, then student will learn better. However, this is part to whole method, and another method is whole to part. Many a time you can use the whole to part method. First you should teach the whole. For example, you want to teach a word neighborhood. Okay, then neighborhood, you can find out certain words which are which may be also used in other word. For example, NEIGHBOUR. So OUR, HOOD, hood, double O. So in this way you can classify them and categorize that large word into small pieces and break down the word into small pieces, and you can teach the student. So this is another method. And motivate and provide continuous reinforcement. See, the most important thing in learning is motivation. If your students are not ready to learn, they are not feeling the need of learning, then they will not be able to. So first thing is motivate the student, and then try to provide continuous reinforcement to the students, and continuously record the improvement, that what improvement students are making. And you can use multi-sensory approach. If you are using just listening for the ears and speaking sense speaking, then it is not enough. You can touch, smell, and skin. So all these senses that they are being able to touch the things. So in this way, multi-sensory approach should be used for dyslexic student, teaching from whole to part, and give extra time to student for completing the learning task. In comparison to other student, dyslexic student take more time, so you should try to give them extra time. And even when you are doing assessment, doing evaluation, you should give some extra time to the student for completing the task. So this is what we have to talk on dyslexia. I think I have just taken 5 minutes extra, sorry for that, but actually there were certain things which I want to add in this my presentation. If there will be a question, because the next presenter is also here, then we will take it later on, or otherwise, as Deepa madam will suggest me to do. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, you have enriched us with sharing a lot of knowledge and information. You have given the ways to identify the dyslexia, as well as you have suggested a lot of intervention a teacher can take. Sir is very supportive, and sir gives his time then and there whenever required in the Vidyalaya. Sir, we are very grateful to you. Now, I would like to invite our another renowned speaker, Dr. B.M. Singh. Sir is a senior psychiatrist at Burhar Central Hospital in Dhanpuri. He has also worked as psychiatrist and सर CMO. थोड़ा सा वर्कशॉप चल रही है, मैं देख लूंगी, है ना सर? मुझे पुटअप होगी फाइल से, है ना? आप लोग चिंता नहीं करिए, ठीक है?
Sir has a vast experience of 30 years. I'm sure Sir will facilitate us with the practical aspect of the learning difficulty dyslexia. You are most welcome, sir. You are requested to kindly share your views. Thank you, sir. Thank you, Deepa. Am I audible? Yes, sir. You are clearly Yes. audible. All right. First of all, good afternoon. Respected Tajuddin Sheikh sir, DC Jabalpur zone, Dr. Vandana Sekhar madam, AC Jabalpur zone, and Principal Mr. Brajesh Pandey. Thank you very much for having me here today, and it is an honor and a privilege both. I'm also thankful to all the participants who have gathered here to listen to dyslexia. And first and foremost, I must say that Dr. Budh Singh has done a wonderful job, and I wish, madam, आपके permission से मैं ditto बोल दूं और we say it's a मेरा talk खत्म हो गया because जो भी बोलना था बुद्ध सिंह सर ने बहुत अच्छे से समझा दिया है. But nonetheless, let us talk about dyslexia. इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, is Hindi a mixture of Hindi and English, all right? हाँ जी हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. Right. वही मैं कहना चाह रही थी सर, हिंदी का भी करें क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी हैं और Right. मदर टंग है, तो Sure, थैंक sure. यू सर, थैंक यू. I have about 20 minutes, right, madam? Okay, we will see about that. तो इसके पहले कि हम लोग डिसलेक्सिया, लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी डिसऑर्डर वगैरह के बात करें, सबसे पहले हम लोग ये समझें कि हम हैं कौन. पृथ्वी पे ढेर सारे स्पीसीज हैं और उनमें से एक हम लोग हैं. एंड द वन थिंग which separates us from the rest is communication. भाषा का जो इस्तेमाल है, ये शायद हमारे आर्मामेटेरियम में सबसे जबरदस्त हमारे तर्कश का तीर है, जो हमको बाकी स्पीसीज से सेपरेट करता है. इसके पहले कि आप मेरी बात आगे सुनो, अपने आप को एक सवाल पूछो कि आप जो भी अभी सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो. जो भी whatever, या यूं कहिए कि हर जीवित प्राणी, इंसान तो बहुत दूर की बात है, हर जीवित प्राणी का बेसिक मोटिवेशन क्या है. चूंकि मुझे मालूम है अच्छे से कि इसके जवाब आप सबके पास हैं, आप लोग ओपिनियन मेकर्स हैं एंड मॉड्यूलेटर्स ऑफ यंग चिल्ड्रंस माइंड हैं, तो आपको सबको आंसर पता है. बट चूंकि वक्त जरा सा लिमिटेड है, हम लोगों का टाइम कंस्ट्रेंट है, तो मैं ही कोशिश करता हूं कि उसको संक्षिप्त तरीके से आपको बताऊं. ऑल लिविंग थिंग्स जो इस पृथ्वी पे हैं, उनका दो ही फंक्शन है. पहला है प्रोपगेशन, पहला है प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ. जरा सा सोच के देखिए, आप जो भी कर रहे हो, आज जितना भी स्टाफ इस मीटिंग में बैठा है, हो सकता है स्टाफ के दिमाग में बात आई होगी कि दिस टाइम कुड बी स्पेंट बेटर एल्सवेयर. हो सकता है, मगर फिर भी बैठे हैं. क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल पांडे सर हैं, तो सागर नंबर 4 के तो सारे लोग आएंगे ही, और मैम तो बैठी ही हैं, तो कैसे आप अटेंड ना करोगे. प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ. देखिए, ये जो शब्द है प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ, ये हर डिमेंशन पे लागू होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजिकल सेल्फ टू द सेंस ऑफ आई. बुद्ध सिंह सर का प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने देखा होगा लो सेल्फ एस्टीम. ये लो सेल्फ एस्टीम क्या चीज हो गई? हम अभी जो भी बैठे हैं अपने कोट्स, शॉल्स एटसेट्रा लगा के, कहीं न कहीं ये बात भी आती है दिमाग में कि लोग जरा देखें और अप्रिशिएट करें कि अच्छा ये बढ़िया है. कहां से? सेंस ऑफ सेल्फ, सेल्फ एस्टीम. तो ये जो प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ है, सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के साथ जो हमको फिजिकल डेंजर ऑफ एग्जिस्टेंस था, कोविड को जरा दरकिनार करें,
कोविड बहुत क्लियरली हम लोगों को बता दिया कि प्रिमिटिव मैन और हम में शायद बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है. The danger of death was very immediate and very, very obvious. But leave aside COVID, because COVID आएगा और भी कैसे ऐसे थ्रेट्स आएंगे. ये जो प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ है आज के जमाने में, ये सेल्फ का कॉन्सेप्ट क्या है? अनफॉर्चुनेटली हम लोग हमारा जो सेल्फ है औरों का हमारे ओपिनियन के बेसिस पे सेल्फ को निर्धारित करते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, लोग क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेगा. इज इट नॉट? हमारी काबिलियत के बाहर जाके हम हमारी बेटी की शादी करते हैं. क्यों? क्योंकि उनके यहां 5 पकवान था तो हमारे यहां 8 तो होने चाहिए. उनके यहां डीजे 10 बजे तक बजा था तो हमारे यहां 12-1 बजे तो बजना ही चाहिए. यू नो, तो पहला जो फंक्शन है प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ, दूसरा है प्रोपगेशन ऑफ सेल्फ. हम अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं. अगर तमाम ह्यूमन एंडिवर्स को एनालाइज करें तो आप फंडामेंटली इसको इन्हीं 2 पहलुओं में अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ऑल आवर थॉट्स एंड एक्शंस आर गियर्ड टुवर्ड्स दीज 2 fundamental propositions. Am I clear? बाद में कभी डिसएग्री करेंगे, I will always be available for that and I would welcome any disagreement. But अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आप पाओगे कि this principle holds good. अब नेक्स्ट प्रिंसिपल, हमारा हर विचार और व्यवहार क्यों होता है? हम जो भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं या क्यों करते हैं, तो इस पे 2 प्रिंसिपल अगेन काम करता है. पहला प्लेजर प्रिंसिपल, हम जो भी करते हैं उससे हमको खुशी मिलती है. पांडे सर इसलिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं बिकॉज ही लव्स डूइंग दैट, ही लव्स शेयरिंग नॉलेज. अपार्ट फ्रॉम फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस एंड एवरीथिंग इज देयर. बट सपोज ही डिडंट वांट टू डू इट रियली, ही कुड ऑलवेज फाइंड एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस. तो एक है प्लेजर प्रिंसिपल. बच्चा स्कूल क्यों आता है? आइडियली हम सबको मिलके एक इतना प्लेजेंट एनवायरनमेंट बनाना चाहिए बच्चे के लिए कि वो सवेरे से चीख पुकार मचाने लगे कि मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को स्कूल जाना है, बिकॉज ही लव्स कमिंग टू द स्कूल. तो इंसान का हर विचार और व्यवहार इज गाइडेड बाय द प्लेजर प्रिंसिपल. एंड सेकंड, आप बोलोगे अरे ठंड के टाइम में यहां बैठ के डिसलेक्सिया पे बुद्ध सिंह साहब और बीएम सिंह की बात सुनो, क्या बकवास है, गरम पकोड़े और भी गरम चाय, ज्यादा मजा आएगा. लेकिन हम पकोड़े और चाय के लिए नहीं जाते हैं, हम यहाँ बैठ के टॉक सुनते हैं. कई शब्द ऐसा सुनते हैं जो पहली बार सुना है. तो हम ऐसा क्यों करते हैं? इसमें तो कोई प्लेजर तो है नहीं. तो द सेकंड प्रिंसिपल विच गाइड्स अवर थिंकिंग एंड बिहेवियर इज पेन अवॉइडेंस. कि अगर ना गए और हमारी गैरहाजिरी नोट कर ली गई तो आगे बड़ा पेन होने वाला है. तो उस पेन को अवॉइड करने के लिए हम आते हैं. You see? तो बच्चा इसलिए स्कूल आए और पढ़ाई करे कि ही वॉन्ट्स टू डू इट. कई बार जो हमारा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस है वो बच्चे के फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने नहीं देता है. तो आइए थोड़ी बात और आगे करें कि जब हमको हमारे थिंकिंग और बिहेवियर का प्रिंसिपल समझ आ गया कि भाई प्लेजर सीकिंग और पेन अवॉइडेंस है और हर चीज हम प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ आई के लिए करते हैं, तो आज का डिसलेक्सिया का टॉपिक कहां से आ गया? तो एक साइंटिस्ट थे मॉर्गन, 1886 में उनके पास एक केस आया था और उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी कि लड़का है तो इंटेलिजेंट मगर उसकी रीडिंग ठीक नहीं है. जब इंटेलिजेंट है, बाकी सब चीज कर रहा है, तो रीडिंग ठीक क्यों नहीं है? तो उन्होंने पहली बार वर्ड यूज किया कॉन्जेनाइटल वर्ड ब्लाइंडनेस. हम इस पे ना जाएंगे कि उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, बस इतना कि उतने साल पहले इंसान इन बातों को कॉग्निजेंस में ले रहा था.
और उसको डॉक्यूमेंट कर रहा था। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये डेवलपमेंट किस चीज को कहते हैं। जितने पेरेंट्स हैं उनके लिए खास करके मैं बता रहा हूं कि ये डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट। जब हम पैदा हो जाते हैं, हम 9 महीने तो मम्मी के पेट में मैच्योर होते हैं, और जब पैदा हो जाते हैं उससे लेके ताउम्र डेवलपमेंट होती है। प्लीज रिमेंबर, फॉर लाइफ। अगर कोई कहता है आपको कि इतनी उम्र के बाद बच्चे को लाए हो, अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते, गलत। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज साइंस आपके साथ है। साइंस कहता है कि डेवलपमेंट इज फॉर लाइफ। अब ये डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या है? हम जब कैलेंडर के हिसाब से हमारी उम्र बढ़ती है, अर्थात वक्त के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ रही है 1 साल 2 साल 3 साल, तो सबसे पहले हमारा ब्रेन, जो जन्म के टाइम लगभग 350 ग्राम होता है, 1 पाव और आधा पाव, लगभग 350 ग्राम, जन्म के पहले 18 महीने में लगभग 3 गुना हो जाता है। और 7 साल के होते होते ये लगभग हमारा एडल्ट ब्रेन का वेट हो जाता है, दैट इज अबाउट 1350 ग्राम्स, मोर और लेस। जितने साइंस के स्टूडेंट होंगे उन सबको मालूम होगा कि जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो फिर डिवाइड नहीं करते, फिक्स्ड कोटा है, जितने से हम पैदा हुए वो नंबर रहता है न्यूरॉन्स का। और डेवलपमेंट है हमारे ब्रेन के इंडिविजुअल सेल्स का आपस में कनेक्शन बनाने का। हम लोग को याद होगा, हम लोगों ने पढ़ी है साइंस में एक्सन्स और डेंड्रॉन्स, अर्थात ब्रेन के हर सेल में कुछ प्रोसेसेस होती हैं और ये प्रोसेसेस दूसरे को छूती हैं, और जितना ज्यादा कनेक्शन बनता है, ये देखा गया है कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग अच्छी होती है, कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। बुद्ध सिंह सर ने बताया था कि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। एब्सोल्युटली, साइंटिस्ट लोग स्टडी कर रहे हैं, और ये जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। एक प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट जो ब्रेन है इसको हेमिस्फीयर्स बोलते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। एमआरआई वगैरह जो इमेजिंग टेक्निक है, इसको करके ये पाया गया है कि नॉर्मल व्यक्तियों के अपेक्षा डिसलेक्सिया से जो लोग सफर करते हैं उन लोगों में हेमिस्फीयर की अबनॉर्मलिटी होती है। तो खैर, हम लोग फिर थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। मेरे पास शायद 10 मिनट है, दीपा मैम। जी सर, यस सर, आपके पास टाइम है, पूरा टाइम है सर। हाँ, नहीं तो और हम लोग बात कर रहे थे डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट क्या है? वह एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है हमारे डेवलपिंग ब्रेन का, हमारे एंटायर नर्व्स और मसल्स का इंटरैक्शन का, और हमारे चमड़े के बाहर की दुनिया के साथ इंटरैक्शन का। देखिए, हम लोग अगर सिंपल देखें तो हम लोग 2 दुनिया में जीते हैं। एक जो हमारे चमड़े के बाहर है, हमारे स्किन के बाहर, एक्सटर्नल वर्ल्ड, और दूसरा हमारे स्किन के अंदर, इंटरनल वर्ल्ड। लाइफ इज अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट। थोड़ा सा सोचिए, देखो क्या है लाइफ। हमारे सेंस ऑर्गन से बाहरी दुनिया की सारी बातें दिमाग तक पहुंचती है। दिमाग डिसाइड करता है कि सबसे एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स इस सिचुएशन का क्या होगा, और उसी प्रकार हमारे शरीर के इंटरनल जो रिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं और ब्रेन एप्रोप्रिएट एक्शन लेता है कि नहीं? तो डेवलपमेंट हमको अडैप्टिव बिहेवियर के लिए तैयार करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैच्योर है, ये बहुत मैच्योर है, ये थोड़ा कम मैच्योर है। कई बार हम आम जिंदगी में यूज करते हैं ना कि इसकी बचपना अभी तक नहीं गई। क्यों?
because he responds in that particular manner. Am I making sense? अभी तक आप लोग मेरे साथ हो? तो अब हम लोग बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज की। ये लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती है? देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज पे बहुत रिसर्च हुई है और आजकल ग्लोबली और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे देश में इसके प्रति अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है। और थैंक्स टू दीपा मैम, उन्होंने जो तारे जमीन पे दिखाया उसके बाद अवेयरनेस कुछ और बढ़ गई, बहुत मजेदार तरीके से बढ़ गया। हालांकि उसमें जो दिखाया गया है इट इज वेरी करेक्ट, वेरी क्लियर। तो हम लोग कोशिश करते हैं अगले 10-12 मिनट में लर्निंग डिसेबिलिटीज को समझने का। सबसे पहले हम लोग कुछ हेडिंग्स में समझ लेते हैं कि भाई ये लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या। बुद्ध सिंह सर ने हम लोग को बहुत अच्छे से बताया है कि वो है क्या। ये बेसिकली हमारी इनेबिलिटी है लिखे हुए शब्द को पहचानने का और लिखे हुए शब्द का उच्चारण कैसा होता है ये सब नहीं आता। एम आई मेकिंग सेंस? अगर हम आपको ये दिखाएं या ऐसे दिखाएं तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी? शायद 2 उंगली है। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी कंक्रीट ऑपरेशंस होती है, जो प्राइमरी टीचर्स हैं उन लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा मैं क्या बता रहा हूं। जो कंक्रीट ऑपरेशन है वो जो जैसा दिखता है वैसा बताता है कि 2 फिंगर परफेक्टली करेक्ट। बुद्ध सिंह सर बोलेंगे और पांडे सर बोलेंगे ये वी है, वी जैसा दिखता है। ये भैया 2 फिंगर से आगे बढ़ के वी, और मैम कहेंगे वी फॉर विक्ट्री। ताजुद्दीन शेख सर कहेंगे विक्ट्री फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स। अब आप देखो, ये एक सिंबल है। आई एम सॉरी, हमारे पास, मैं ओपीडी में बैठा हूं तो हमारे पास बोर्ड नहीं है, अदरवाइज हम लोग उसको कॉन्सेप्ट को प्रोग्रेस करने के लिए चॉक एंड बोर्ड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये जो वी जैसा दिख रहा है, यह आपने कैसे समझा कि ये वी है? आप लोग आज जितने जन बैठे हो जो डिस्लेक्सिक नहीं है वो इसको वी के रूप में पहचानेंगे। आपने सोचा, और पेरेंट्स लोग खास करके ध्यान दें कि ये वी जैसा आप क्यों बोले? क्योंकि किसी ने इतना वक्त निकाल के आपको बताया कि ऐसा जो स्ट्रक्चर है उसका उच्चारण वी से होता है। सिंपल लगा ना? अगर हमारी डेवलपमेंट नॉर्मल है, हमारे ब्रेन के अंदर के सेल्स के कनेक्शंस बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो हम अपने एज के अनुसार नॉलेज गेन करते हैं। आप लोग याद कीजिए, बुद्ध सिंह सर ने बताया कि अगर आंख कान की कोई बीमारी है कि अगर आप देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते, जिसके कारण आप लर्न नहीं कर पा रहे, प्लीज रिमेंबर ये लर्निंग डिसेबिलिटी की श्रेणी में नहीं आता है। ये एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है। जब हम लोग डायग्नोज करते हैं तो उसमें ये बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो किसी विजुअल या ऑडिटरी या साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल बीमारी के कारण ना हो, क्योंकि फिर तो वो प्राइमरी बीमारी कुछ और हो गई है कि नहीं। तो डिसलेक्सिया जो है, इट इज द इनेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द रिटन वर्ड एंड वर्बलाइज द स्पोकन वर्ड। बस हम अक्षर को पहचान नहीं पाते और उसका उच्चारण नहीं कर पाते। एम आई मेकिंग सेंस? आप लोगों का मैं 2-3 मिनट खास तौर पे लूंगा एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। जैसे
हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो सबसे प्राइमरी लेवल पे या किंडरगार्टन लेवल पे पहले हम लोगों को अल्फाबेट सिखाया जाता है ना। हमको आइडेंटिफिकेशन करना सिखाया जाता है कि भाई ऐसा अगर दिख रहा है तो ये होगा, अगर ऐसा है तो ओ है, ऐसा है तो टी है कि नहीं, ऐसा है तो डब्ल्यू है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब पहले लेटर सिखाए जाते हैं, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर सिखाए जाते हैं, उसके बाद वर्ड सिखाया जाता है, फिर सेंटेंसेस सिखाया जाता है। और जैसे हम मिडिल से हाई स्कूल के तरफ जाते हैं तो हम कंक्रीट मीनिंग से एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग समझते हैं। यहां हमारे टीचरों का भरपूर योगदान रहता है। ओके, एम आई मेकिंग सेंस? यहां तक आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? तो डिसलेक्सिया के कॉजेज क्या हैं? ढेर हैं। एक कहते हैं जेनेटिक है कि अगर परिवार में इसकी किसी को डिसलेक्सिया है तो 30 to 45% चांस है कि ऑफस्प्रिंग को भी डिसलेक्सिया होगा। एक दूसरा, क्रोमोसोम की स्टडीज करी गई तो पता चला क्रोमोसोम नंबर 6 और 15 पे डिसलेक्सिया कॉजिंग फोकस है। एमआरआई करके जब देखा गया तो डिसलेक्सिया जिन लोगों को होता है उन लोगों की ब्रेन की स्ट्रक्चर की गड़बड़ी होती है। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है फोनोलॉजिकल डेफिसिट हाइपोथेसिस। ये फोनोलॉजिकल डेफिसिट हाइपोथेसिस क्या है? अगर हम एक एग्जांपल दें CAT, तो आप क्या बताओगे पांडे सर जी? सर मैं कैट बोलूंगा इसको। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब सब कोई थोड़ा ध्यान से सुने। सर ने CA और T को कैट कहा है, लेकिन हम लोगों को बताया क्या गया था, ये C है, ये A है और T है। कैट क्यों? CAT क्यों नहीं? ये है फोनोलॉजी, द साइंस ऑफ फोनोलॉजी, साइंस ऑफ साउंड्स, की हर वर्ड जो है उसको साउंड के हिसाब से हम ब्रेक कर सकते हैं। CAT बन गया क अ ट, कैट, क ट, कैट, क अ ट। धीरे से बोलेंगे, क ट, कैट। इसको फोनीम्स बोलते हैं। फोनीम हमारे शब्दों का सबसे छोटा साउंड का हिस्सा है। सबसे छोटा साउंड एक वर्ड का जो हिस्सा है, सबसे छोटा साउंड कई साउंड को मिला के एक वर्ड बनता है, जैसे कैट, बैट, हैट एटसेट्रा। तो जो साउंड है उसको फोनीम बोलते हैं। डिसलेक्सिया में बच्चा ये समझ नहीं पाता है कि शब्दों के इंडिविजुअल साउंड के कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन किया जा सकता है, और वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो इसलिए उसको CAT जैसा ही दिखता है, TAC जैसा या ACT जैसा नहीं दिखता। जरा सा समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे को CAT जैसा ही दिखता है, मगर वो ये नहीं समझ पाता कि इसके जो कंपोनेंट साउंड्स हैं क अ ट, वो यहां पे गड़बड़ा जाता है, और इसको हम लोग एरर ऑफ डीकोडिंग बोलते हैं। ठीक है? उसी प्रकार, चूंकि आज हम डिसलेक्सिया पे बात करते हैं, अगर इसी को राइटिंग में करें डिस्ग्राफिया हो गया, और मैथमेटिक्स न कर पाए डिस्कैल्कुलिया हो गया। ये हमारे स्कूल के संदर्भ में सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट ये है। और यहां पे मैं एब्सोल्युटली एग्री करूंगा और थैंक्स बोलूंगा बुद्ध सिंह सर को कि उन्होंने रिपीटेडली हैमर किया कि जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं 80% उसमें से लर्निंग डिसेबिलिटी जो है उसमें डिसलेक्सिया है, रीडिंग की डिसेबिलिटी है। तो जो भी कारण अब आपको बताएं लोग कि उसका एमआरआई और ये वो, आपको मैं एज अ प्रैक्टिसिंग साइकियाट्रिस्ट बता दूं विद द बेनिफिट ऑफ टेक्स्ट्स आल्सो, तमाम साइकियाट्री की टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो यही बतलाती हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ पैथीज विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द पैथीज, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक वगैरह, ऑल इन्वेस्टिगेशंस कि बच्चा ऐसा आ गया, अब उसका भैया ब्लड टेस्ट कराओ, सीटी कराओ, एमआरआई कराओ, 25,000 का बिल बना, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रियली रिक्वायर्ड अनटिल अनलेस आपका डॉक्टर कन्विंस्ड है कि कोई प्राइमरी परेशानी है जिसके कारण ये हो गया है, जैसे ट्रॉमेटिक डिसलेक्सिया। अगर कोई प्राइमरी कंडीशन नहीं है तो व्यर्थ के इतने टेस्ट नहीं करानी हम लोगों ने। तो क्या करना है हम लोगों ने कि भाई डिसलेक्सिया की डेफिनेशन हो गई, ये भी पता चल गया कि उसके कारण क्या है, और ये भी पता चल गया कि जितनी थ्योरीज हैं उसमें सबसे जबरदस्त थ्योरी फोनोलॉजी डेफिसिट थ्योरी है, जो ये बताता है कि बच्चा का डिकोडिंग एरर है, वो वर्ड्स के इंडिविजुअल फोनीम्स को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। तो जब ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है तो जाहिर है वो उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाता। जब प्रोनाउंस नहीं कर पाता तो टीचर उसको क्लास के बाहर कर देती, या फिर उसके पेरेंट्स उसको बोलते तुमसे ये भी नहीं हो रहा है, तुम्हारा छोटा भाई देखो तुमसे ज्यादा पढ़ रहा है, बदमाशी कर रहा है। और अगर यही परिस्थिति बरकरार रही तो थोड़े दिन के बाद या तो बच्चा में टेम्पर टैंट्रम आने लगता है, गुस्सा हो जाता है, स्कूल रिफ्यूजल होती है, और धीरे धीरे लोगों से बातचीत करना छोड़ देता है, बदमाशी करता है। क्यों? सेल्फ प्रिजर्वेशन। अगर स्कूल जाऊंगा तो पढ़ना पड़ेगा, रीड नहीं कर पाऊंगा तो टीचर घर भेज देगी या पेरेंट्स को बुला के पेरेंट को बताएगी, पेरेंट फिर से मेरे को डांटेंगे। इससे अच्छा है कि हम स्कूल ही ना जाएं। इज इट नॉट वेरी अट्रैक्टिव? बच्चे के दिमाग में सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए बहुत बहुत जरूरी है, जिसके वजह को मद्देनजर रखते हुए डीसी सर, एसी मैम, पांडे सर एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आप लोग ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस परेशानी में कुछ भी नहीं। आपको बता दूं कि विंडो पीरियड आपके पास एक ही साल का है, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 3 के पहले डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल है। क्लास 4 एक साल अगर एक डेवलपिंग माइंड ब्रेन को, एक बच्चे को 365 डेज एवरी डे ऑफ द ईयर उसके सिग्निफिकेंट अदर्स माने उसके बाकी भाई बहन, उसके दोस्त, उसके टीचर्स, उसके पेरेंट्स, हर कोई अगर नेगेटिव कमेंट ही पास करेगा तो सेल्फ एस्टीम को जबरदस्त धक्का पहुंचता है और मैल अडेप्टिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर उसके अंदर ऑटोमेटिकली आती है। ट्रुएंसी स्कूल के नाम से निकला और स्कूल गया ही नहीं, क्योंकि स्कूल नहीं जाएगा तो उसको इतनी परेशानी से का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मेरे पास 5 मिनट है। Yes, sir. राइट। Yes. व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज टू मेक थिंग्स शॉर्ट। मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूं, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है। सो लेट मी सी इफ आई कैन गेट इट। विंडो, ये और कर दो, एक मिनट, छोड़ छोड़
छोड़िए सर। आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? Yes, sir. अब कोशिश कीजिए इसको पढ़ने का। मुश्किल है ना? अब नीचे जो लिखी हुई है उसको वैसे ही प्रोनाउंस कीजिए। आप लोग को दिख रहा है? Yes, sir. Visible. It is visible. Is visible? Yes, sir. Screen is visible and you are clearly audible. Okay, thank you. तो this is good morning for Japanese. अब आप थोड़ी देर जो परेशान हुए थे, सोचिए हमारा बच्चा जिसको डिसलेक्सिया है वो उसको हमेशा ऐसा ही फील होता है जब हम उसको एक एकेडमिक एनवायरनमेंट में रखते हैं। जस्ट इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट इज। इन चीजों को हम जरा हटा देते हैं। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि इंडियन जो स्टडीज हैं उनको जब कोलैट किया गया तो ये देखा गया कि प्राइमरी स्कूल में 2 से 18% बच्चों को डिसलेक्सिया होती है, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 2019 में उसने ये फाइंडिंग बताई थी कि लगभग 10% ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को डिसलेक्सिया है, और मेल्स और फीमेल्स में कोई अंतर नहीं है। ये सारी बातें तो हम लोग बता दिए। ये फिर से हम बताना चाहेंगे कि फोनोलॉजिक डेफिसिट हाइपोथेसिस ये वो थ्योरी है जो ये बतलाता है कि क्या प्रॉब्लम है। इसमें ये डेवलप नहीं होती, उसको साउंड के छोटे छोटे हिस्सों में हम तोड़ सकते हैं और फिर उनको जोड़ के एक स्पोकन वर्ड बना सकते हैं। कब हमको सावधान होना चाहिए? बच्चा में अगर क्लास के हिसाब से लैंग्वेज की डेवलपमेंट नहीं है, ठीक से वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, क्लास 3 हो गया मगर क्लास 1 के हिसाब की वोकैबुलरी है, पोएम्स राइम्स नहीं बता पाता है, सिमिलर वर्ड्स का डिफरेंस नहीं समझ पाता है, उसके बाद आप देखो जल्दी रेस्टलेस, बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता है, ध्यान ज्यादा देर नहीं एक जगह टिकती, अपने साथियों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाता, और अगर फैमिली हिस्ट्री है, पता चलता है कि घर में और किसी को ऐसा है, तो एज ए टीचर हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए और उन लोगों को प्रॉपर एडवाइस देना चाहिए। हमको क्यों सावधान होना चाहिए? वह इसलिए कि जितना ज्यादा वक्त गुजरेगा हमको उसके डायग्नोसिस करने में, तो उतना ही डिफिकल्ट उसकी सक्सेस होगी। कैसे डायग्नोसिस होती है? ढेर सारे स्पेशलिस्ट लगते हैं, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है, काउंसलर है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर है और चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट है। न्यूरोलॉजिस्ट जो है वह ब्रेन की बीमारियों को रूल आउट कर देता है, काउंसलर जो है उसके घर का वातावरण देखता है और देखता है कि क्या घर का या स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा है जिससे बच्चा अपने पोटेंशियल को नहीं अटेन कर रहा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसका आईक्यू असेसमेंट करता है, और ये जब पाता है कि उसकी इंटेलिजेंस तो नॉर्मल है और फिर नहीं पढ़ पा रहा है, तभी हम उसको डिसलेक्सिया मानते हैं। स्पेशल एजुकेटर वह व्यक्ति है कि डायग्नोसिस के बाद वह उस बच्चे के लिए इंडिविजुअल प्रोग्राम बनाता है। मैनेजमेंट के क्या क्या पिलर्स हैं? प्लीज रिमेंबर, दिखा तो रहा हूं 3: रिमीडिएशन एजुकेशन, साइकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी। बुद्ध सिंह सर आपने बताया भी था कि कोई दवाई, तो मैं आपको बता दूं डिसलेक्सिया की कोई दवाई नहीं है। हाँ, डिसलेक्सिया जो दूसरी बीमारियों के साथ एसोसिएटेड हो जाती है, जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर या कंडक्ट डिसऑर्डर या डिप्रेशन, तो उन बीमारियों के लिए जरूर हम दवा दे सकते हैं, मगर डिसलेक्सिया पर से के लिए कोई केमिकल या फार्मास्यूटिकल एजेंट नहीं है। साइकोथेरेपी हम करते हैं ताकि बच्चे का सेल्फ एस्टीम बेहतर हो, बच्चा दूसरे बच्चों के साथ इंटरैक्ट अच्छे तरीके से करे और अपना फुल पोटेंशियल को पाए, उसके लिए साइकोथेरेपी। ये रीमीडिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से दिखा रहे हैं कि रीमेडियल एजुकेशन जो है, स्पेशल एजुकेटर, टीचर्स टू स्टार्ट विथ, एंड स्पेशल एजुकेटर और फिर टीचर्स,
ये साइकिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक बहुत अहम हिस्सा हो। और यूं कहिए कि स्पेशल एजुकेटर का अगर लेफ्ट हैंड पेरेंट्स हैं तो राइट हैंड आप हर इंडिविजुअल प्राइमरी स्कूल के टीचर हो। और फिर से बतलाना चाहूंगा कि जितना जल्दी हम इसको शुरू करें उतना ही अच्छा। अब तरीके को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वो आज के डिस्कशन के बाहर का है, लेकिन मैनेजमेंट क्यों करें? इसलिए करें कि अधिकतर जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनको हाई स्कूल में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब वो ठीक हो जाते हैं। तो हम क्यों ना इसको शुरू करें रिमीडियल एजुकेशन। फिर ध्यान दीजिए, मोस्ट स्कूल एज चिल्ड्रन डू नॉट नीड रिमीडिएशन पास्ट ग्रेड स्कूल, अर्थात हाई स्कूल में उनको रिमीडिएशन की जरूरत नहीं पड़ती, बशर्ते कि हम प्रॉपर टाइम में आइडेंटिफाई करें क्लास 3 और रिमीडिएशन करें। अब आप बोलोगे साहब हमने देखा कहीं 90+ लोग अटेंड कर रहे हैं, तो सब बोलेंगे भाई प्रूफ चाहिए। तो आपको जान के बहुत खुशी होगी, हमारे देश शायन मुंबई में एक स्टडी की गई थी जहां यह पाया गया कि डायग्नोसिस के दौरान जब बच्चों का मार्क्स 43% आया था, वही मार्क रिमीडियल एजुकेशन के बाद 65% हो गया, अर्थात 22% हो गया। तो मुझे लगता है ये प्रूफ काफी है कि डिसलेक्सिया अगर डायग्नोज हो जाए तो हम हैरान और परेशान बिल्कुल ना हो, रादर हम सब मिलके इसका समाधान करें। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you, sir. I hope all the experiences and the talk you shared has deepened our understanding on the dyslexia. Thank you everyone for listening with patience. Now the session is open for all. You may ask your queries or share your knowledge if any. Yes, ma'am. नमस्कार सभी को। सर एक ये चीज पूछना चाहेंगे, देयर वाज अ क्वेश्चन आल्सो फ्रॉम द ऑडियंस कि क्या हियरिंग, अगर कोई बच्चा ठीक से सुन नहीं पाता है तो क्या हम उसको एसोसिएट कर सकते हैं डिसलेक्सिया से? नहीं मैम, अगर हियरिंग की प्रॉब्लम है, सुनने की कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो उसको हम आइडियली डिसलेक्सिया डायग्नोज नहीं करेंगे, क्योंकि हियरिंग अगर ठीक होगी तो ऑटोमेटिकली उनकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए ऑल्टरनेट मोड्स ऑफ एजुकेशन है, जैसे स्पेशल एजुकेशन में जो प्रावधान है, पहले तो कोशिश करेंगे कि उसकी हियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मैम देखिए, जैसे कॉन्जेनाइटली डेफ चिल्ड्रन रहते हैं बट पढ़ते हैं, तो उनको हम अगर क्राइटेरिया ही है मैडम कि डिसलेक्सिया के डायग्नोसिस के लिए जरूरी है कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड ना हो, क्योंकि ये मेंटल रिटार्डेशन नहीं है, बच्चा देख अच्छा से सके, क्योंकि अगर ठीक से नहीं देखेगा तो आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत होगी, और सुन अच्छा से सके, क्योंकि सुनेगा नहीं ठीक से तो वो वर्बलाइज कैसे करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली सर। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर जो कि जिनका बोलना काफी लेट होता है। हाँ जी, तो उसमें इसका कहीं ये एसोसिएशन? एक, हाँ जी मैम, ये एक अर्ली वार्निंग साइन है। देखिए, डेवलपमेंट अगर जैसे ठीक उम्र में बच्चा पलंग पे पलटने लगता है, गर्दन उठाने लगता है, पलंग से बैठने लगता है, चलने लगता है, माँ बाबा बोलने लगता है, इसके नॉर्म्स हैं कि इतने इतने टाइम के अंदर हो जाना चाहिए। बाई एंड लार्ज 9 महीने से 1 साल के अंदर बच्चे को खड़ा हो जाना चाहिए, थोड़ा बहुत चलना चाहिए बिना सपोर्ट के, कुछ बैबलिंग शब्द करने चाहिए। तो अगर एज अप्रोप्रिएट अगर बिहेवियर होती है तो नॉर्मल है, लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि बोलने में देरी हो रही है तो एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए। डिसलेक्सिया हम लोग तुरंत जंप नहीं करेंगे मैम, क्योंकि हमने बताया ना, प्री स्कूल चिल्ड्रन में डिसलेक्सिया डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। थैंक यू सर।
Thank you. एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। क्या बच्चे डिसलेक्सिया से जो सफर कर रहे हैं वो कंप्लीटली ठीक हो सकते हैं सर, या ये लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी है? मैम, एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग क्लीशेड, आप ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब गोल गोल बात घुमा रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इनके बारे में क्या कहना है? आई मीन दे वर ऑल डिसलेक्सिक्स, तो बिल्कुल ठीक हो जाते मैम। आप देखो ना, मैंने बताया ना कि अगर ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग याद करें डॉक्टर बुद्ध सिंह सर का जो स्लाइड था जिसमें डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सीवियरिटी है, ये सवाल वैसा ही है कि क्या कैंसर के मरीज ठीक होते हैं? हाँ, डिपेंड ये करता है कि कब आइडेंटिफाई किया गया और ट्रीटमेंट ठीक टाइम पे और ठीक टाइम तक हुआ कि नहीं, तो डेफिनेटली ठीक होते हैं मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून, अंकुर यादव बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी अंकुर। सर, मेरा बेटा 9 साल का है और लगभग 3-3.5 साल की उम्र में हमने उसको डायग्नोसिस किया था कि उसको ऑटिज्म है। सर, गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में हमने दिखाया, फिर जबलपुर के जो लोकल डॉक्टर्स हैं हमने वहाँ पर भी दिखाया, एंड एट प्रेजेंट ही स्टडिंग इन KV 1SCC इन क्लास 1st। और सर, उसका सोशल बिहेवियर इशू मुझे ज्यादा समझ में आता है। एकेडमिक्स में वो बहुत अच्छा है, हम दे रहे काम। एकेडमिक्स में वो बहुत अच्छा है सर, लेकिन सोशल बिहेवियर की मैं बात करूं तो जो भी चीजें टूटने वाली होती हैं, फॉर एग्जांपल कांच का ग्लास, कांच की बोतल, गमले, ये सर जैसे जितनी जल्दी चाहेगा ये उठाता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, और जब वो टूट जाता है तो उसे एक अलग अपनी खुशी मिलती है। सेकंड, उसका थोड़ा नहीं, मैं कहूँगा बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है कि वो 100% अपनी बातें कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। पानी पीना होगा, खुद से जाकर के ग्लास लेकर के पानी पी लेगा या सिर्फ बोलेगा पानी। उसकी जो टेस्ट की खाने की चीजें होंगी वो जाकर के ले लेगा, अपना लेके खा लेगा। पर हम जब सॉलिड चीजों की बात करें, मैं उसे रोटी खिलाने की कोशिश करूं या सब्जी उसके मन से खिलाने की कोशिश करूं, तो या तो उसे वोमिट हो जाएगी या तो वो खाएगा नहीं। बट वहीं उसके पसंदीदा अगर पराठे हैं या पूड़ियाँ हैं तो वो उन्हें नॉर्मली चबा चबा के खा लेगा। तो मेरा सबसे बड़ा जो कंसर्न और इशू जा रहा है उसको डेवलप करने में, एक तो सोशल बिहेवियर उसका प्रॉपर नहीं आ रहा है, दूसरा ये जो भी टूटने वाली चीजें हैं, कई बार वो दूसरों के घर में भी जाकर के उठा करके गमले या पॉट्स तोड़ देगा, कांच की ग्लास बॉटल्स होंगे मिल जाएंगे वो तोड़ देगा। इसको कैसे काउंटर और हैंडल करें सर, अगर कोई आपके पास सजेशन हो तो। थैंक यू अंकुर जी। सबसे पहले आप जो बता रहे हो कि बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोज किया गया है जी, तो ऑटिज्म के जो पहली बात तो ये बता दूं कि ये आप मेरा नंबर चाहो तो बाद में आप पांडे सर से ले लीजिएगा, क्योंकि हम आपसे आराम से आपके सारे सवालों का समाधान भी कर देंगे, क्योंकि आज का जो फोरम है पर्टिकुलर ऑटिज्म को लेके नहीं है, क्योंकि आप जितने भी कंप्लेंट बता रहे हो वो क्लासिक ऑटिज्म के लक्षण हैं जी। और ऑटिज्म भी जो है, एक तो क्या है कि एज का प्रोटेक्टिव इफेक्ट या बेनिफिशियल इफेक्ट होता है ऑन ऑटिज्म की जो सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स है वो वक्त के साथ थोड़ा सा कम होता है, मगर उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्पेशल एजुकेटर्स की, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में वो जा रहा है। जबलपुर में जो लोकल लेवल पे जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, हम 3 से 4 घंटे की क्लास उसको दिलवा रहे हैं, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी वो सब हो रही है। लेकिन जिस हिसाब से हम कहते हैं ना, एज अ पेरेंट मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, मुझे पता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है अभी एट प्रेजेंट, तो उसके हिसाब से जो चेंजेस उसमें आने चाहिए सोशल बिहेवियर को लेकर के, एज वेल एज जो वो तोड़फोड़ कर रहा है सर। अंकुर जी आई एम सॉरी टू स्टॉप यू, ये आप ना मेरे से पर्सनल टाइम में बात कीजिए, आप मेरे से फोन ले लो, आई विल बी मोर देन हैप्पी, मैं आपकी पूरी बातें को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा सर। अगर आप अभी मुझे अपना नंबर दे पाए तो मेरे पास दूसरा एक सेल फोन है हाथ में, मैं अभी डायरेक्टली डायल करके सेव कर सकता हूँ। 9767 9767 99 99 76 76 33। थैंक यू सो मच सर। इट्स अ प्लेजर अंकुर। मैम विथ योर परमिशन, जितने भी पेरेंट्स हैं जो बात करना चाह रहे हैं, ये फोरम शायद अप्रोप्रिएट नहीं होगा फॉर इंडिविजुअल एडवाइस, क्योंकि फिर बाकी लोगों हम लोग का टाइम फ्रेम कंस्ट्रेंट है। नहीं, और इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी
क्योंकि ये इतने सेंसिटिव इश्यूज हैं, जैसे अंकुर हाँ जी जी, जो हाँ पॉइंट जी, बता हाँ जी। रहे हैं वो डेफिनेटली इन पब्लिक फोरम वी कांट डिस्कस, क्योंकि जिस समय सर आपसे बात करना चाहेंगे तो बहुत सारे आपके पर्सनल एस्पेक्ट्स उसमें कवर Okay. होते जाएंगे विच हाँ जी, हाँ यू जी। मे बी क्वाइट हेजिटेंट टू शेयर, है ना, Sure, sure. स्पेशली जो बच्चे का बिहेवियर बता रहे हैं उसके बहुत मतलब सर तो बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, मैं बिल्कुल समझ गई सर ने क्यों ऐसा कहा है। तो बहुत अच्छा रहेगा सर कि आप सर से पर्सनली बात करिए, तो जो इसके इस बिहेवियर का शायद मेन रीजन होगा वो आप उसको समझ पाएंगे, क्योंकि कई बिहेवियर बच्चों के जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं those are sometimes guided and controlled by the behavior of their adults also in the family, in the social atmosphere. तो कई रीजन हो सकते हैं उसके, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं पेरेंट्स से यही कहूंगी कि आप लोग जो भी आपके इंडिविजुअल इश्यूज हैं, इसीलिए पेरेंट्स को भी हमने शामिल किया कि जहां पर उनको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप दोनों हमारे एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर बुद्ध सिंह जी, डॉक्टर बीएम सिंह जी, आप इनके पर्सनल नंबर ले लीजिए और पर्सनली इनसे बात करें कि बिकॉज दे आर द लाइक ना ऑथेंटिक people who can help you to work on these issues, है ना। तो बिल्कुल आप लोग जनरल नेचर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें जरूर लेंगे, इंडिविजुअल आप लोग अलग अलग जरूर बात करिए और बहुत अच्छा रहेगा। और ये हम लोग चाहेंगे कि ये हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हैं, उनकी एक्सपर्टीज हमारे पेरेंट्स को बहुत असिस्ट करेगी और बच्चों के बेटरमेंट के लिए हम उनको जितना अच्छा एटमॉस्फेयर दे दें तो बहुत अच्छा है। फिर एक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं कहना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी, आई थिंक डिसलेक्सिया डज नॉट मीन दैट चाइल्ड इज नॉट इंटेलिजेंट। ये पेरेंट्स सभी समझिए कि डिसलेक्सिया जो है वो कहीं भी इंटेलिजेंस से एसोसिएट नहीं हो रहा है। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत अच्छा करते हैं, और अगर हम बिगनिंग उनकी जो एज है, प्राइमरी एज है, उसमें अगर आप उनको पेशेंस के साथ, हमारे पेरेंट्स की स्पेशली टीचर्स को बहुत पेशेंटली उनको समझना है, बहुत प्यार से स्नेह से उनकी इस समस्या को समझकर बिना उनको बताए हुए हम उनको हैंडल कर सकें, तो ये बच्चे लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। मतलब मेरे पास मैं लिस्ट है, आपको शायद मालूम नहीं सबको जानकारी है कि नहीं, हमारे इंडिया में अभिषेक बच्चन को सब लोग जानते हैं, अमिताभ बच्चन के जो बेटे हैं वो डिसलेक्सिया के पेशेंट रहे हैं, उनको डिसलेक्सिया था जब वो छोटे थे, और अभी हम सोच भी नहीं सकते कि वो डिसलेक्सिक पर्सन रहे हैं, लेकिन टाइम से उनका डायग्नोस हुआ व्हेन ही वाज हार्डली आई थिंक 8 और 9 ईयर ओल्ड, तब उस समय उनका डायग्नोस हुआ, उस पर वर्क भी हो सका। ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन का आइडेंटिफिकेशन लेट हुआ, ही स्ट्रगल्ड अ लॉट, बिगनिंग में उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई, कई तरह की उन्हें थेरेपीज भी लेनी पड़ी। तो ये है कि हम कैसे टाइम से अगर आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। और कभी भी ये ध्यान रखिए, अपने बच्चों को डिस्कार्ड नहीं कीजिए, आप उनके साथ इरिटेट नहीं होइए, उनके समझने के, सीखने के तरीकों को समझकर ही हमें उनको हैंडल करना है। तो हमारे जो हम बड़े हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल यही है कि हम बहुत पेशेंस के साथ और प्यार के साथ इन बच्चों को, इन केसेस को समझ सकें। और ये बच्चे, आप बिल्कुल भी पर्टर्ब नहीं हुई, उस संबंध में बिल्कुल शंका नहीं रखिए, आपके बच्चे बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में, बहुत टॉप मोस्ट पोजिशंस पर पहुंचेंगे, दे विल एक्सेल इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ द लाइफ। तो उसको कहीं भी बच्चे की उस कमजोरी से नहीं जोड़िए कि वो कुछ कर नहीं पाएगा, तू तो गधा है, तू नहीं कर सकता, तू तो पिछलग्गू है। इस तरह के शब्द, इस तरह की भाषा हमें बिल्कुल भी बच्चों के साथ इस्तेमाल नहीं करनी है, जो हम अपने टीचर्स से भी कहते हैं स्कूल में, पूरी हम लोग बिल्कुल भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी भी बच्चे से नहीं करें। वो देर से बोल रहा है, देर से रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं बोलना चाह रहा है, आप उसको अलग से डील कीजिए। तो मेन हमारे इस वर्कशॉप का यही है कि हम लोग उन पॉइंट्स को समझ सकें कि कैसे हम इन बच्चों को हैंडल करें। बहुत पेशेंस की जरूरत है, बहुत केयर तो आप लोग सब पेरेंट्स करते ही अपने ढंग से, लेकिन आप उसको समझिए। अपनी फोर्स लर्निंग, हमें बच्चों के जो मैक्सिमम हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स लर्निंग पे हम लोग ज्यादा जाते हैं। नहीं साहब, उसको IIT देना ही है बच्चे को, उसको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है ना, उसको ये वाली बुक्स वो तो पढ़ लेता है, एनसाइक्लोपीडिया मेरा बच्चा नहीं पढ़ पाया। तो ये जो हम सोशल कंपैरिजंस हैं, आपके प्रेस्टीज इश्यूज, हम सोशल प्रेस्टीज में उलझ जाते हैं। तो इन चीजों से हम जितना अपने को दूर रखेंगे उतना हम अच्छे से इन केसेस को डील कर पाते हैं। और उसके लिए बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं हुई है, बहुत रिलैक्स रहिए। और हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे से इस बात को हमें समझाया है, और आप सब लोग बिल्कुल सर से अलग से भी
कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली टाइम कांस्टेंट थोड़ा हो जाता है क्योंकि हम लोग के ऑफिशियल कमिटमेंट्स हैं, सर के मेडिकल कमिटमेंट्स और ज्यादा हैं, सबके कहीं ना कहीं हैं। तो आई होप कि हम आगे भी इस तरह की कोई वर्कशॉप कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। डीसी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मुझे कुछ बात करना है डॉक्टर साहब से। हाँ बोलिए। मैम, मेरा बच्चा जो है वो बात स्लो करता है, कंटिन्यू बात नहीं करता, लेकिन समझ जाता है, सब करता है। 3 क्लास में है, सौम्या दत्त सतनामी। हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है मैम? हम आपको सुन पा रहे हैं। जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए सर। मैम, मैंने अपने मनोचिकित्सक को भी दिखाया मैंने अपने बच्चे को, तो डॉक्टर साहब बोल रहे कि बच्चे में कुछ नहीं है, सिर्फ ये बोल नहीं पा रही है। मेडिकल चेकअप भी करवाया मैंने मैम के कहने पे भी, और मैं स्वयं गया था, और अभी भी मैं बच्ची का इलाज कराते रहता हूँ। बस वो कंटिन्यू बोल नहीं पा रही है और लिखने लगी, अब सब कुछ लिखने लगी, लेकिन उसका दिमाग जो है वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है मैम। तो क्या मेरा बच्चा सही हो पाएगा? हेलो जी हेलो। जी हाँ, सौम्या के पापा राइट? जी जी। देखिए, मेरे लिए अभी सिर्फ इतनी बात सुन के कोई ओपिनियन देना थोड़ा डिफिकल्ट है। जी। आप अगर चाहो तो मैंने पहले ही कहा है कि मेरा नंबर आप लेके मेरे से इंडिविजुअली बात कर लो, जितना तक हो सकेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? जी हाँ, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर सकते। ये बेसिकली सेंसिटाइजेशन वाली प्रोग्राम थी कि हम समझ गए कि क्या है, और हताश होने वाली या परेशान होने वाली बात नहीं है। खाली कहाँ सोल्यूशन मिलेगा बस हमको वो पता करना है। राइट पर्सन, राइट टाइम, राइट प्लेस, है ना? सही जगह पहुंचना है। तो आप प्लीज मेरे से बाद में बात करना, तो मैं डेफिनेटली जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी। Yeah, Deepa ma'am, we'll wind up this. Okay. Yes, sir. So we are at the end of our workshop. So I would like to request to Ms. Nishima Singh ma'am, headmistress of KV GCF Jabalpur, to give vote of thanks. Nishima ma'am, you are requested. Ma'am, we cannot hear you. Ma'am, please unmute yourself. We cannot hear you. Ma'am, you are not audible. ऐसा करिए पांडे सर, आप कंक्लूड कर दीजिए, है ना? ठीक है सर, मैंने दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर लिया। Yes, ma'am is there. Okay, ma'am. Am I audible now? Yes, ma'am, you are audible. आप दोनों ही डॉक्टर BM सिंह और डॉक्टर बुद्ध सिंह सर ने इतने सहज तरीके से हमें डिसलेक्सिया के बारे में बताया। हम शिक्षकों को उसकी पहचान, कारण और जो रेमेडिएशन के बारे में बताया। सर, हम आपके सब बहुत ऋणी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस तरीके के जो ज्वलंत मुद्दे हैं जो हमारे शिक्षक हमेशा क्लासरूम में फील करते हैं, फेस करते हैं, उसके बारे में उन्होंने सोचा और ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे आदरणीय डीसी सर का कि उनका केयर, गाइडेंस, कंसर्न प्राइमरी एजुकेशन के लिए हमेशा रहता है, हमें हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं देना चाहूंगी हमारी असिस्टेंट कमिश्नर मैडम डॉक्टर वंदना शेखर मैडम का। मैडम, सबसे पहली बार आपसे इंटरेक्शन का मौका मिला और हम लोगों को बहुत ही सहज फील हुआ। ऐसा लग नहीं रहा है कि हम आपसे पहली बार फेस टू फेस आपसे बात कर पा रहे हैं। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद करना चाहती हूँ पांडे सर का, दीपा मैडम का एंड द टीम KV4 सागर। कंटिन्यूस हम लोग कांटेक्ट में रहे हैं और बहुत अच्छे से प्लान भी किया और एग्जीक्यूट किया इस वर्कशॉप का।
और अंत में मैं सभी साथियों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपनी बातें रखी, समझा इस बात को। और मैडम, हमारे सभी मुख्य अध्यापक और वरिष्ठ साथियों प्राइमरी संभाग के प्राइमरी सेक्शन के एश्योर करना चाहती हूँ मैम कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इस मुद्दे के साथ बच्चों के बेटरमेंट के लिए काम करने के लिए, उनको हर संभव सहायता और समझ के साथ जो उनको समझना है और उनको गाइडेंस देना है मैडम, हम पूरी कोशिश करेंगे। और जब भी समय समय पर आवश्यकता होगी तो हम पांडे सर को कांटेक्ट करेंगे कि यदि हमें कुछ जरूरत पड़ेगी तो अपने जो विद्वान साथी हैं, जो हमारे रिसोर्स पर्सन रहे हैं, डॉक्टर सिंह, डॉक्टर बुद्ध सिंह एंड डॉक्टर बीएम सिंह, हम उनका मार्गदर्शन अवश्य यदि जरूरत पड़ेगी तो हम फिर लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you, everyone, for joining this workshop. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you all. आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हम लोगों को गाइड दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म